جی مفتی صاحب آ گئے ہیں جی ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بٹ صاحب آپ سنائیے، خیریت ہے؟ جی شکر اللہ کا. ذہن نصیب مفتی صاحب آپ آئے ہمارے لیے بڑی یہ قابل فخر بات ہے. تو تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس. ہمیں آنا چاہیے تھا آپ کے پاس. تو نہیں جی، میں تو بٹ صاحب ویسے ہی ٹک ٹاک نہ ہونے کے برابر آج کل یوز کر رہا ہوں. نہیں لیکن مفتی صاحب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے نا، آپ جیسے عظیم انسان ہمارے پاس آئیں چل کے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہمیں آنا چاہیے. آپ ہمیں صرف آرڈر کیا کریں، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جایا کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سلامتی عطا فرمائے. تو نہیں میں نہیں تو بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے یا نہیں پتہ کہ میں جی اپنی براڈ تو بہت کم کرتا ہوں، جی اور بس دوستوں کی ہی براڈ پہ کبھی اگر آنا ہو جی. تو کوئی براڈ دیکھتا ہوں، اگر چل رہی ہو تو اس کے اوپر پھر مفتی بیٹھ صاحب جاتا آپ ہوں. آ گئے تو بہت اچھی بات ہے. اتفاق سے آپ سے پہلے ایک دوست آیا تھا تو اس نے نا ایک سوال کیا تو ہم تو خاموش ہو گئے. ہم نے بولا بھی یہ کسی مفتی صاحب سے ہی پتہ کریں. تو اتفاق سے آپ آ گئے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال رکھ دوں اس کا. جی 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 فرمائیں. وہ بندہ کہہ کے گیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی صورت تھی جس کا وہ آپ کو کسی کو یاد ہے؟ بس جی آپ میں بیان کر دیتا ہوں. جی آپ بیان کر سر دیں پلیز. جی السلام علیکم مفتی مبشر صاحب محترم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جناب عابد صاحب، کیا حال ہے جناب؟ جی خیریت، شکر الحمدللہ. سر وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے نا، وما محمد الا رسول. جی 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 وہ قد خلات والی، تو اس کے اوپر وہ یعنی کہ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ بعد میں قتل یا موت کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کا بھی مراد یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. جی اچھا. یہ والا سوال تھا انہوں. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. تو میں نے کہا بھی ہمیں تو علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے. تو آپ اتفاق سے آ گئے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ ذرائع پہ روشنی ڈالیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں اور دوسرے دوست بھی سن لیں اور بات کلیئر ہو جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے. پلیز مفتی صاحب جزاک اللہ. وہ چلے گئے ہیں کہ یہاں ہی ہیں؟ ادھر براٹ میں تو نہیں ہے، نیچے شاید بیٹھے ہوں، پتہ نہیں ہے. نہیں اچھا، کیونکہ معترض یا سائل سامنے ہونا تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے، اور ہاں اس قسم کے غیبی سوالات تو وہ پھر ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں ہیں. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے جوابات تو ہم نے بہت دفعہ دیے ہوئے ہیں. تو جی جی اصل بات ہوتی ہے کہ آمنے سامنے آ کے کسی صاحب علم سے بات کی جائے. تو یہ جی قادیانی ٹھیک. لوگ سامنے تو بات کرتے نہیں ہیں. جی اور یہ نیچے ایک بندہ لکھے رہا ہے کہ جی مفتی صاحب پلیز احمدیت پر بات کریں. ہاں جی ہاں جی، تو آپ اوپر آ قادیانیت جائیں پر بھائی ہی جان. بات کر رہے ہیں جناب. آپ اوپر آ جائیں بھائی جان. اگر بات آپ نے ہاں احمدیت پہ جی کرنی جی ہے تو مفتی صاحب آئے یہ ہوئے ہیں تو بشارت آپ صاحب آ قادیانی ہیں کیا؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں جی یہ قادیانی. ہاں ہاں، تو لیکن بشارت صاحب جناب لیکن آپ یہ کا بھی اگر یہ سوال ہے تو آپ کر لیں. نہیں نہیں اپنا مفتی صاحب پتہ کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ جرمن کی پیدائش ہیں، تو یہ ان کے پاس یعنی کہ یہ کوئی سوال جواب نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں اچھا، بس یہ سننے سوال میں جواب نہیں دلچسپی رکھ. کرتے. تو نہیں میں نہیں تو اور نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، تو یہ فرما رہے تھے بشارت صاحب کہ گالی گولی نہیں دینی چاہیے، اور گالیاں دینی اچھی بات نہیں ہے، بڑی اچھی گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. تو مجھے یہ بات سن کے نا بڑا اچھا لگا، اور میں اس لیے کال پہ آیا ہوں. تو میں نے جی کہا چلو میں آمنے سامنے جا کے بات کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم مرزا صاحب کی کتابیں دیکھتے ہیں تو جی وہ تو گالی کے بغیر تم بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے نا یہ سن کے بڑا شوق، وہ کیا انگلش میں کہتے ہیں، شوق شاک ہوا ہوا. میں. ایک منٹ مفتی صاحب معذرت. بھائی جان اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو یہ جو گیسٹ کا نشان بنا ہے نا دو بندوں کا، وہاں پہ آپ انوائٹ کریں تو آپ اوپر آ جائیں گے اور آ کے مفتی صاحب سے بات کر لیں آپ. ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں.
تو میں تو بہت جناب پریشان ہوا کہ قادیانی تعلیمات اور ہیں، قادیانیوں کی تعلیمات کوئی اور ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کی تعلیمات تو یہ ہے کہ گالی نکال کے بات کرو، گالی جی کے جی بغیر تو تبلیغ ہوتی نہیں نا، لو جی جب اپنا تک تو مفتی صاحب یہ آ گئے ہیں نیچے سے جنہوں نے کہا ہے کہ کچھ احمدیت پہ بات کریں تو ان سے بات آپ کریں ہاں جی نعمان بھائی جناب نعمان صاحب جی جی السلام علیکم مفتی صاحب، جی کیا حال ہے جی سب کا؟ وعلیکم جی السلام السلام جی شکر اللہ کا جی آپ سنائیں جی جی میں مسلمان ہوں، اہل سنت سے ہوں، تو مفتی صاحب اچھا آپ سے جی ایک سوال تھا کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے ان کا فیوچر کیا ہے احمدیت کا، جماعت کا، یہ کہاں جا رہی ہے؟ ان کا ہم مائنڈ کیسے چینج کر سکتی ہیں ان کو؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا آگے 10 سال بعد 15 سال بعد جماعت کا کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہم تو 10 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں آگے تو تب چل رہے ہیں کہ جب پیچھے بیک گراؤنڈ اچھا ہو، پوری دنیا کے اندر ٹوٹل قادیانیوں کی تعداد ان کے سارے فرقے ٹوٹل سارے فرقوں کو ملا کر کے 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے یہ پوری ورلڈ کے اندر، اور اچھا رولا یہ ڈالیں گے او ہو ہم تو دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے، دنیا کے 220 ملکوں میں ہم پہنچ چکے ہیں، تو یوں ہے تو وہ ہے، یہ حالات ہیں۔ تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں نا پھر؟ ہاں بالکل، وہ تو مرزا صاحب سے انہوں نے لیا ہے نا، مرزا صاحب ماشاءاللہ اس چیز کے ماہر تھے، بہت زیادہ ماہر تھے نا، تو جیسا کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں گالی کے اوپر، تو جی مرزا صاحب دیکھیں وہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 کے اوپر فرماتے ہیں ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ ہی نہیں۔ استغفر اللہ مطلب یہ کہ استغفار۔ نعمان صاحب آپ مرزا صاحب کی فتح کے قائل ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میں تو مرزا کو لعنت دیتا ہوں، بالکل بھی نہیں مانتا، ہاں میں تو پھر سنتا رہتا آپ ہوں کو لائف۔ وہ حرامی کہہ رہے ہیں کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہے وہ حرامی ہے، حرام زادہ ہے، استغفر استغفر آپ حلال زادے نہیں، اور مجھے بھی گالی دی ہے انہوں نے، مجھے بھی وہ یہی استغفر کہہ رہے جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ حرامی ہے، یہ اس ہے کو تو ایک تبلیغ کی کافر معیار۔ کہلاتی ہے نا، جو مرزا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے ان کی نظروں میں۔ چلو ہاں کافر کا تو نہیں چلو دیکھیں کافر ہونا ایک الگ چیز ہے، کافر تو جی ہمارے نزدیک بھی بڑے ہیں، لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ کافروں کو گالیاں نکالی جائیں۔ نہیں 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 دیکھیں مفتی صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں معذرت نعمان بھائی دیکھیں کافر ہونا ایک اور چیز ہے لیکن آپ کسی کو یہ کہنا کہ حرام زادہ ہیں آپ تو ہاں یار یہ وہی تو نا، توبہ گالی دینا ایک الگ چیز ہے، کافر کہنا، کافر نہیں تو نہیں ایک نہیں حکم بتانا ہے نا۔ اب دیکھیں جی میں جی مفتی ہوں، مجھ سے جی کوئی آپ شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر تو حکم میں کفر لگتا ہوگا تو میں بتاؤں گا بھائی اس پہ حکم میں کفر لگتا ہے، صحیح تو بات یہ تھوڑی ہے کہ میں اس کو کہوں، حالانکہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو میں کہوں اوے حرامیاں، اوے نہیں یہ کتے غلط بات کمینیا ذلیلہ، یہ بہت چلو غلط یہ یا آپ طریقہ یہ کہیں غلط کہ ہے، مطلب یہ یا کافر ہونا ایک الگ چیز ہے، بالفرض ہم لوگ مرزا قادیانی کے نزدیک کافر تھے، تو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ روحانی استغفر اللہ خزائن جلد 14 استغفر صفحہ اللہ۔ 53 کے اوپر، ہاں جی تو مفتی استغفر صاحب جب ان کی لائف پہ جاتی ہیں تو یہ مرزا پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہاں نہیں قرآن اور کریں گے حدیث بھی پہ آ نہیں نا، جاتے ہیں۔ کریں بھی نہیں گے بھی نہیں، وہ آپ کو الجھا کے رکھیں گے، جیسے میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کا مسلک پوچھنا ہے انہوں نے، ہاں جی مسلک دس، اچھا مسلک پوچھنے کے پیچھے یہ ہوتی ہے ان کی کہ پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اہل سنت ہے تو بتائیں گے کہ وہ دیکھو جی دیوبندیوں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تمہارے اللہ حضرت اللہ کے بارے میں، اور وہابیوں نے یہ ایک کہا ہے تو شیعوں نے یہ کہا ہے۔ اگر کوئی بالکل بندہ بالکل ہو جی میں شیعہ ہوں تو اس کو چلو جی دیکھو جی بریلویوں نے تمہیں یہ کہا ہے تو وہابیوں نے کہا ہے، دیوبندیوں نے کہا ہے۔ اگر کوئی وہابی ہو تو دیکھو جی یہ دیوبندیوں نے تمہیں یہ کہا تو بریلویوں نے تو شیعوں نے یہ کہہ دیا، وہ یہ ڈرامہ ہوتا ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بیچ میں کہ بھائی جان ہوا اگر ادھر آپ کی ایک چلے ادھر کی چلے، وہ جی کہندے جی نے نا ایک جناب جی جی مراسی دا پتر مفتی صاحب اپنے مفتی صاحب پیو نو معذرت کہن کے لگا ساتھ کہ عباس پورا پنڈ بھی مر جائے نا جی تے
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ पूरी दुनिया ही काफर क्यों ना हो जाए पूरी दुनिया ही गैर ईमान क्यों ना हो जाए मिर्जे कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो आसमान पे हो या जमीन पे हो हाँ सही बात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात यह है कि मिर्जा कादियानी एक जानी आदमी था शराबी था और बड़े गलत काम करता था बड़े गुनाह करता था उसके दलाइल मौजूद है हमारे पास मुफ्ती तो साहब भाई इनकी वो सब कुछ मिर्जे भी पे हो तो गया तो वो चीजें कैसे खत्म करोगे वो तुम्हारे सामने एक मुअम्मा है इसको खत्म करो किसी तरीके से मुफ्ती वो साहब ये मिर्जे खत्म पर तो तो ये हो नहीं बात नहीं सकता उन्होंने करते। फिर ये तरीका निकाला हुआ है अच्छा जी वो मसलक बताओ तो फिरका बताओ तो तुम आपस में काफर हो तो ये उसने उसको काफर कहा तो उसने उसको कहा तो देखो ना जी हजरत ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो तो देखो ना जी वो नबूवत जा रही है ना जी देखो जी तो देखो जी अब बताएं इन चीजों से ये वो चीजें हैं कि दरख्त के पत्ते झाड़ने वाली बात है और भाई जड़ तो नीचे मौजूद है सही बात मिर्जे की सही जात बात का क्या करना है तुमने वो किस किनारे पे लगाओगे हजरत ईसा आपको मुर्दा साबित कर भी दो तो मिर्जा को किस किनारे पे लगाना है वो तो बताओ ना हाँ जी वो शराबी था तो वो शराबी है वो शराबे पी पी के मर गया शराब पी पी के वो दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र का उसको मर्द लगा हुआ था वो करके मर गया वो जानी आदमी था उसने तरह तरह की रंडियां अपने पास रखी हुई थी हाँ ये कोई हंसी वाली बात नहीं है इनकी किताबों में लिखा हुआ है हाँ, बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ है। दलाइल मौजूद हैं मेरे पास किताबें मौजूद हैं अभी कोई मुझे कहे अभी अगर भट्ट साहब मुझे अभी कहे मैं इधर से झट किताब खोल के ये लो जी ऐप है आज हेलो ऐप ये अपना मुफ्ती साहब ये खान साहब आए हैं ये जो है ना नीचे बड़ी कोई गलत बातें कर रहे थे गाली वगैरह तो इनसे ज़रा बात करते हैं आप करें इनसे बात ये खान जी साहब खान आपने साहब खान साहब माइक खोलें अपना और बात करें नीचे आपने बहुत गंदी बात लिखी थी अभी आप बात करें और दलील के साथ बात कीजिएगा खान साहब अगर तो ये गालियां दे रहे थे तो ये फिर वो खान साहब की फेक आईडी है अच्छा खान साहब नीचे की ये आदत नहीं है गालियां देने की नीचे उन्होंने लिखा तुम अपनी माँ को ले आओ और हमें दे दो इन्होंने नहीं लिखा नहीं खान ये साहब फिर फेक आईडी अच्छा वो खान साहब को तो मैं जानता हूँ वो गालियां नहीं देते पता नहीं अब फिर ये माइक खोलें बात तो करें खान साहब हाँ फेक आईडी है इसलिए माइक नहीं ओपन कर रहे अच्छा अच्छा इनको अच्छा नीचे ऐसा उतार भी दे होता ऐसे है आपकी बराड़ के ऊपर असर डले पर अच्छा ऐसे भी होता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम खान साहब ही हैं जी शाह जी मैं वो एक आ गया था दरवाजे पे एक साली मेरी का बेटा तो मैं उधर चला गया था यहाँ पे रूम में फोन रखा हुआ था। अच्छा तो खान साहब ये आपने लिखा है तुम अपनी माँ को ले आओ और शाह जी के बारे में उसने गलत कमेंट किया था इसलिए मैंने लिखा उसको। अच्छा उसको लिखा है मैं क्या अल्लाह माफ़ करे पता नहीं हमें कह रहे हैं आप नहीं वो अच्छा देखिए मैंने उसको ऐड करके उसको जो ना रिप्लाई किया है उस चीज पे। अच्छा 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 अल्लाह खैर ये सॉरी हमारे मुझे उस्ताद समझ खान साहब मोहतरम के अपना ये पास एको हो रहा है अपने माइक को ठीक करो। नहीं हमारे उस्ताद मोहतरम के बारे में कोई अगर कुछ गलत बोलेगा तो फिर हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं ना। हाँ हाँ कुछ ना हाँ नहीं कुछ मैं रिप्लाई तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता चला मैं गलत था मैं समझा शायद कोई फेक आईडी है या कोई और बंदा है या कोई जमात अहमदिया का बंदा है मेरा तारफ असल में नहीं हुआ था आपसे अच्छा आपने उधर किया चलें अच्छा हो गया बहरहाल ठीक है जी मुफ्ती साहब प्लीज़ आप जारी रखें बात अच्छा तो ये मौजूआत जो है ना ये सारे दुनिया हा के मौजूआत छेड़ लो जी सवाल वहां पर ही खड़ा रहना है भाई अगर कादियानियों से बात करने के लिए आप निकलेंगे उन्होंने तो भाई एक से बढ़ के एक मौजू आपके सामने लेके आना है बताएं फिर क्या करेंगे सही 24 बात घंटे उस मौजू पे गुफ्तगू होती रहेगी टिक टाक के ऊपर मैं जिस दिन से आया हूं बस यही जी देखा मतलब मौजू पे वो आते ही नहीं है क्योंकि वो सवालात ही माशाल्लाह इनके बड़े हैं ये सवाल मेरा ये सवाल मेरा ये सवाल मेरा ये सवाल सवाल पे सवाल दागते चले जाएंगे कि मतलब ये कि आप लोग बैठ के दिन भर उन सवालात के जवाब देते रहे मिर्जे की जात की तरफ आए नहीं ये है असल में पॉलिसी मुफ्ती साहब पॉलिसी जब ये भी है मैं इनकी लाइव ऑन करता हूँ मिर्जे पर बात नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ वो नहीं करेंगे भी नहीं ना कभी भी नहीं करेंगे
उनको पता है जब बात हुई तो बीच में से जनाकारी निकलनी है, शराब नोशी निकलनी है, रंडीबाजी निकलनी है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र निकलना है, 16 दिन तक पखाने की राह से खून आते रहना, क्या मौजदा डिस्कस होना है, बातें होनी है। तो इससे बेहतर है इनको किसी और तरफ ही लगा के रखो। हाँ, ये है पॉलिसी, कादियानी पॉलिसी। ये असल मौजू की तरफ, मुद्दे की तरफ आगे काम तो हो जाना है खराब। अब होता यह है कि हमारे दोस्त और हमारे तालिबे इल्म, उनको जी तो पता है, उनको पता है, उनको ये चीज पढ़ाई गई है, उनको यही सिखाया है उनके उस्तादों ने कि ना बेटा मौजू ते रखना है, गल मौजू ये है मिर्जे की जात और किरदार। तो तुम अपनी बराड़ करो तो मौजू यही छेड़ना है। सही बात। तो हाँ, मुफ्ती साहब कोई और इनके मौजू हाथ पे के हमने पीछे बात कौन करनी है? नहीं है, ये बात। पीछे इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मस्जिदें कैसे बना रही हैं? ये अब चंदा वो इकट्ठा सपोर्ट करके तो फिर बना रही होती हैं? ही है ना, सपोर्ट वही लोग हैं कि जिन्होंने मिर्जे कादियानी को खड़ा किया था। यहूदियों का अल्लाह कार है, यहूदियों ने खड़ा किया। यहूदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन है और उन्होंने ही खड़ा किया। नीचे माजरत के साथ अपना और नीचे जो इसराइल बंदे को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, और पूरी दुनिया के किसी एक मुसलमान की मस्जिद वहां पे नहीं है, एक मुसलमान इसराइल के अंदर नहीं है, जबकि अभी भी इसराइल के गुंडों ने मुसलमानों के ऊपर, नहिते मुसलमानों के ऊपर जो मजालम ढा रहे हैं, अभी तक ढा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने। आप अंदाजा कीजिए कि कादियानियों का जो मरकज है वो इसराइल हाइफा के अंदर है। हाइफा के अंदर इसराइल की फौज के अंदर कादियानी शामिल है, वो ही गोलियां बरसा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। वो ये कादियानियों ने, यहूदियों ने खड़ा किया कादियानियों को, और ये यहूदी सपोर्टर हैं, और हम प्याला और हम नवाला हैं यहूदियों के और मुसलमानों के दुश्मन। जी सही बात। ये नीचे बंदे गालियां दे रहे हैं, तो यार जो भी बंदा है ना ऊपर नहीं, है, वो अगर गालियां गैरत नहीं है दे रहे, आप वो लोग, मिर्जा साहब की वो तिलावत कर रहे हैं। मिर्जा साहब तो भी तो यही आपको कर लेते। जो म्यूट कर दे, आपके अंदर व्हाट्सएप उसको इतनी म्यूट कर गैरत, दे। नहीं, म्यूट नहीं करना, लोगों को देखने दे, असल हकीकत पता चलनी चाहिए ना। तबलीग हो रही है अच्छा भाई, शाह जी, दुनिया के किनारों शाह तक जी, तबलीग पहुंच रही है, तबलीग पहुंचनी चाहिए। तबलीग ऐसे तो नहीं ना पहुंचेगी, जब तक मुफ्ती गाली ना साहब आपका जो लिखेगा कादियानी यूट्यूब तो चैनल तबलीग है वो कैसे काफ़ी, पहुंचेगी। यूट्यूब चैनल तो बहुत अच्छा है भाईजान नीचे आपका, जो भी बंदे उसमें बकवासात काफ़ी लोग कर रहे हैं, देखते मैं हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऊपर आएं और अपनी गैरत का मुजाहरा करें। डरते क्यों हैं? ये बुज़दिलों का काम होता है नीचे बैठ के गालियाँ देना। मुफ्ती साहब आए हैं, आप बात करें, अगर आप सच्चे हैं तो ऊपर आएँ। ये क्या बात है नीचे बैठ के गालियाँ देना? आपके जो जो जिनको आप नौज़ुबिल्लाह नबी कहते थे वो भी गालियाँ देते थे, आपने भी गालियाँ पकड़ ली हैं। इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मुफ्ती साहब ने जो रेफरेंस दिए हैं वो झूठा करके साबित करें, इनको आए ऊपर। नीचे बैठ के गालें देने से क्या आपको चार चांद लग जाएंगे? ये बुज़दिलों के काम है, ऊपर आए। भट्ट साहब वो झूठ कह रहे जानते हैं हैं कि कि मुफ्ती साहब मुफ्ती झूठ ना 100% बोल। सच चलो बात मैं कर रहे हैं। आपको फिर, आपने फिर झूठ देखे ही नहीं है। आजिज की किताब है मिर्जा गुलाम कादियानी की शोहरा अफाक 200 झूठ। हाँ जी, तो कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि याद करोगे कादियानियों, इससे पढ़ के सुनाने माशाल्लाह। लगा। लो डुब के मर जाओ, हुण तुहानू सामने पे लाइव हाल दिखाण लगे। अच्छा जी, रूहानी हुसैन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर आपके गाली गलोच वाले मसीह साहब, मसीह गाली गलोच लिखते हैं, अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौत 6,000 में पैदा होगा। जी अहादीसे जी, सहीहा, सही हदीसों। वाह। मैं कहता हूँ दुनिया की एक हदीस, पूरी दुनिया की एक हदीस, ज़ईफ नहीं, मौजू। अच्छा, मौजू हदीस ले आओ, मुंह मांगा इनाम ले लो। अल्लाह अकबर। जबकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में मिले। सुने, ये तो अभी एक हाँ, झूठ है, इसके अंदर मैंने मिर्जे की बयान करदा 200 हदीसें जमा की हैं, ओह, सब हदीसें ही। कि वह हदीसों अच्छा, में आया, हदीसों में आया, कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया। मुंह मांगा इनाम का ऐलान किया हुआ है
किताब को लिखे और छपे हुए भी कोई 10 साल से शायद ज्यादा हो गए, आज तक एक चीज का भी जवाब नहीं है, अच्छा माशाल्लाह, लो जी एक चीज का जवाब दौड़ नहीं के है। मार लो। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 118, आपके मसीह गाली गलोच साहब फरमाते हैं बाज अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो जुल्करनैन होगा। सिर्फ एक मौजूद ही इसलिए आओ, मुंह मांगा इनाम हमसे ले लो, अल्लाह ये गौर ये मैदान निकलो मैदान में। वाह, झूठ की सुभान बात की थी ना मुफ्ती, झूठ ना बोल, अब फैसला कर दो, झूठ मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा मसीह गाली गलोच झूठ बोल रहा है। फिर कहने ने सही बूटा बात। गालां कट दे, बूटा किसी ने लिखा है मिर्जा को छोड़ो, ईसा को बुलाओ। शैतानी खजाइन जिल्द 12 सफा 75, मसीह गाली गलोच साहब फरमाते हैं बाज अहादी और असारे नबविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा, सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। सिर्फ एक हदीस ले आओ, मुंह मांगा इनाम ले लो। वाह, हदीस सही नहीं, हसन नहीं, गरीब नहीं, ज़ईफ नहीं, मौजू ले आओ, मौजू हदीस के वाह, साबका किताबों के अंदर कहीं पे वैसे ही किसी ने वो लिखी हो झूठ, जिसको हाँ, मौजू कहते हैं, जो घर में बैठ के हदीसें बनाई जाती हैं उनको कहते हैं मौजू, ये मौजू हदीस है, वजह की है सही किसी। जैसे हदीस मिर्जा ज़ईफ कादियानी याद बनाता था। रखिएगा, हदीस ज़ईफ के मतन के अंदर शक नहीं होता, उसकी सनद के अंदर शक होता है, उसकी सनद डाउन होती है, उसकी रावी जो होते हैं उनमें रावियों में इसको ये कर रावी के ऊपर कोई तान होता है, उसको ज़ईफ कहते हैं। वो ज़ईफ हदीस भी बाज मामलात के अंदर मोतबर होती है और बाज मामलात के अंदर वो ज़ईफ भी तकवीयत पकड़ जाती है। ये तो ज़ईफ हदीस का हुक्म है, मैं तो मौजू मांग रहा हूँ, तो मौजू ले आओ। ये तो अभी सिर्फ तीन बयान की हैं, तो मौजूद है। और 10 साल हो गए मुफ्ती साहब आपको हैं ये चैलेंज किए हुए, 10 साल हो हाँ, गए ये ये किताब के शुरू में चैलेंज मौजूद है और हाँ, नेट के ऊपर भी किताब मौजूद है, नेट के ऊपर मौजूद है। मुफ्ती अच्छा, साहब जब ये PDF की किताबें सूरत उनको में पेश मौजूद करती हैं, कादियानियों को जब ये माशाल्लाह। किताबें पेश करती हैं, ये कहते हैं तुम ये सही नहीं है, किसने लिखी है, तुम्हारे अपने स्कॉलरों ने लिखी है, ये हमारे मिर्जा का साहब ये नहीं है, इन्होंने फिर अपनी किताबें बदल दी हैं सारी। वो बदले जाएं, कितनी बदलेंगे, वो सब कुछ मौजूद है, नहीं बदल सकते। मैं कहता हूँ बदलेंगे कि भाग जितनी मर्जी नुमान भाई जितना जितनी मर्जी मर्जी बदले, बदलने, देखें मतलब ये है 10 कि साल अब मैं आजज अपनी बात करता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पर तकरीबन कोई 25-26 साल तो मुझे राउंड बोर्ड हो गए हैं सोशल मीडिया, माशाल्लाह यानी यूं समझ लें कि सबसे पुराना सोशल मीडिया का खत्म नबूवत का मुजाहिद मैं ही हूँ, सिर्फ एक। मैंने बहुत सुना आपको, मैं आपने यानी तो वो पहला कैमोनिस्ट पाल से टाक के पहले दिन से लेके बात कर रहा हूँ, उस टाइम का बंदा अभी शायद कोई भी नहीं। वो जिस दिन मैं आया था पाल टाक के ऊपर, उस दिन का बंदा मुझे तो कोई नजर नहीं आता। तो मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया का सबसे पुराना मैं हूं। माशाल्लाह। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने मिर्जे की किताबों को पिया हुआ है, वो पढ़ा नहीं हुआ, उसकी टोटली कुल्लुहुम, इनके अखबारात, इनके रसाइल, इनके चीजें रट्टी रटाई, तो बड़ी बात और है वो मुफ्ती साहब। पहले से महफूज है हमारे पास, उसके असल स्कैन यहाँ लाइब्रेरी के अंदर, किताबें, असल चीज, हर चीज फील्ड है ना हमारी। बदलेंगे बाहर के जाएंगे कहाँ? अब रोड़ा ये है कि वेबसाइट के ऊपर जब तब्दीली करते हो ना तुम, तो वो पकड़ी जाती है। इनकी वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर एक छोटा मोटा भी जो है प्रोग्रामर या जो इस फील्ड को समझता है, इस मामले को, सोशल मीडिया को, तो ये चोरी वो पकड़ सकता है आसानी से।
एक जी जी आगे वेबसाइट है आर्काइव, किसी भी वेबसाइट का लिंक उसके अंदर डालो, वो आपको तब्दीलियां बताएगा कि इस ये जिसका लिंक तूने मुझे दी है ना, फला फला दिन इस वेबसाइट के ऊपर ये तब्दीली की, वो आपको बल पूरी हिस्ट्री जब से वो वेबसाइट बनी होती है ना, वो सारी हिस्ट्री आपको बता दे। मुफ्ती वाह साहब कायदियानी अपने एक है इनमें बात, ये अपने बच्चों को तालीम बहुत देती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं अपनी जमात को किसी तरह से कि एक नहीं, डॉक्टर कौन सी बनाओ, तालीम देनी इंजीनियर है? गाली बनाओ गलौज इनको। के अलावा कौन सी आज तक मैंने तो देखे तालीम से की बात यह है, तालीम दुनियावी तालीम शायद आप कह रहे हैं, ये हाँ कह रहे जी, हैं हाँ जी। दुनियावी, हाँ हाँ, वो तो दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है बिल्कुल। वो चंदे और नहीं ये लेने होते, चंदे तो लेने होते हैं ना, फिर ज़ाहिर है दुनियावी हाँ हाँ, तालीम वो दे। तो है ना, बस जो अल्लाह का एक बच्चों को निज़ाम शुरू है से ही वो। जब पैदा होती हैं समझाना शुरू कर देती हैं, पढ़ो ज़ाहिर है पढ़ो उसका पढ़ो, अपना मफाद है ना जमात इनको वो। ट्रेन करती है। जी जी सही बात। जी मुफ्ती साहब प्लीज, ये मामला है। ये देखना आप नीचे देखिए ना, हम बैठे हुए हैं ना, जी तो सामने बुला रहे, आओ यार बात करो, कोई सही गाली बात। नहीं, वो गाली कोई किसी भी नहीं, सिर्फ मैं मिर्जे की हैरान, किताब पढ़ के सुनाएंगे, उस किताब का नाम इन्होंने गाली रखा हुआ है कि मुफ्ती तू गालियां देता है। अच्छा मैंने मैं हैरान अभी होता यही, हूँ कोई मैं एक बंदा आपकी। मेरी गवाही दे दे, जब से मैं यहाँ आया हूँ कोई एक गाली दी हो, जब से मैं पहले दिन पाल टाक पे आया था उस दिन से लेके आज तक कभी माशा सोशल मीडिया पे कोई गाली दी हो, कोई माशा बता दे, मेरे बारे में सही बता दे। बात, मैं तो मिर्जे की किताबें पढ़ता हूँ। सही बात। मैं अच्छा कहता मैं हूँ, मादर अब देखिए माद एक बात मैं कहता हूँ, मैं कहता जी हूँ वो एक कादियानी कुत्ती के बच्चे, ये गाली है कि नहीं, कोई बताए बंदा, जी 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 बताए, थोड़ा सा ऊंचा हाँ बताए, कोई मसला नहीं, जी जी गाली बनती है जी गाली बनती है ना। जी। मैं कहता हूँ ये मिर्जे की किताब में लिखा हुआ है, मिर्जे कादियानी ने नजीर को कहा है, नजीर साहब को, कि ये कुत्ती का बच्चा है, सबूत मेरे जिम्मे, मैं दे देता हूँ, सही बताइए कि ये गाली आप कह भी रहे हैं, ये गाली है, मुबशर शाह निकाल भी रहा है, ये खाते किसके में जाएगी? वो मुबशर शाह के जाएगी, या मतलब मैं नाकिल हूं, मैं नकल कर रहा हूं तो मनकूल अनहु से की तरफ जाएगी? बताइए। सही बात। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर रमज़ान मुबारक में आप नकल भी ना करें तो अच्छी बात है। नहीं क्यों ना करें, ये तो मतलब गाली रमज़ान में आप रुके हुए हैं तो अच्छी बात है, रमज़ान में आप नहीं, ये गालियों से गाली रुक है गए कि हैं। नहीं कुत्ती का बच्चा? वैसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखें मुंह से ये नजीर ना साहब से निकालें पूछ ना, रहे थे, नजीर साहब ये कुत्ती का बच्चा गाली है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं निकालना ना, अपने मुंह से नहीं वैसे निकालना है गाली। कि नहीं, पहले बताएं तो सही, गाली ये है तो कि क्योंकि माहिर आप हैं गालियों में, आप बता नहीं? सकते हैं यार ना चलो गाली छोड़ है। दे, मैं माहिर गाली बाजू, एक्सपर्ट हैं ये आप, कुत्ती का बच्चा स्पेशलाइज गाली हैं है आप। कि नहीं? गाली मुझे तो लगती है, आपको पता नहीं लगती अच्छा शायद। आपको लगती है, तो यहाँ पर एक तो हवाला मैं रमज़ान में आपको, तो आप रमज़ान में तो रुक जाए ना चलो रुक गया मुफ्ती जी, साहब, चलो रुक गया। चले जज़ाकल्लाह, रमज़ान में रुक जाए, उसके बाद फिर बेशक आप कर लें। अच्छा रमजान में थोड़ा कंट्रोल करें, शैतान अच्छा, बंद हो जाता है ये रमजान में। किताब, ये एक मिनट। अच्छा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नज़ीर नजीर भाई साहब साहब इस जी किताब को जानते हैं आप? नजीर नज़ीर साहब भाई तुम्हारा नजीर जो साहब इस अपना किताब को मिर्जा जानते हैं बोल आप? के गया, नज़ीर भाई एक मिनट आप नजीर साहब खामोश इस रहो। किताब को जानते हैं आप? नज़ीर जी भाई जी जी खामोश जानते रहो। हैं जानते हैं। नजीर साहब इस नज़ीर किताब को भाई जानते हैं? नज़ीर भाई खामोश रहो। बाट साहब हाँ जी अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। ये वो क्या नाम जी है, कालू भाई वालेकुम बात सलाम। करेंगे। नजीर साहब इस किताब को बाट जानते हैं आप? साहब किसी को वल्दुज़ना कहना, नजीर साहब ये कंजरी का इस बच्चा किताब को कहना जानते और हैं? कंजरी के यार बच्चे बाबा कहना, जानते हैं, भट्ट साहब जानते हैं। इनको जरा नीचे उतारिएगा, भट्ट कालू साहब साहब, ये जी जी भट्ट साहब, मुझे आप जी, अगर साहब। एडमिन बना देंगे ना तो ये काम मैं खुद कर लूंगा। शाह जी एक बाट सेकंड, शाह साहब जी ये एक तो नजीर सेकंड। साहब बताएं, इस भट्ट किताब साहब, को जानते हैं? बाट साहब किसी को कंजरी का बच्चा कहना गाली है या नहीं? भट्ट साहब भट्ट साहब इस कालू ऑफिस वाले को बाट उतारो साहब नीचे मैंने तो यार। आपसे पूछा है किसी को कंजरी का बच्चा कहना गाली है या नहीं? अभी तुम्हारी किताब पढ़ के वो तुम्हें बताते हैं ना कि भट्ट तुम साहब क्या हो। मौजूद है? वेट भट्ट करो, तुम साहब। नीचे बैठो। भट्ट साहब जी 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 उतार दिया आप मैंने। मुझे एडमिन बना दें अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, ऐसी क्या बात है, मुनासिब वाली क्या बात है, अल्लाह आप माफ बना करे देंगे ऐसा तो क्यों? मैं फिर खुद कर लूंगा हैंडल। अच्छा जी नजीर जी साहब जी से पूछना था, नजीर साहब ये किताब को जानते हैं आप? जी जी मुफ्ती साहब जानते हैं जानते हैं। ये किसकी है ये किताब? ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की है। मसीह मऊद से मुराद कौन?
वक्त इमाम हकम मौदल इमाम नाम मेहदी उनका क्या था नाम? तो वो हजरत मिर्जा मिर्जा जेल गुलाम में अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो ये मुफ्ती सफा साहब नंबर यहाँ पर मैं एक जाता हूँ 97 है आपकी सफा। आपकी आईडी नहीं शो हो रही मुफ्ती साहब इधर ये मुफ्ती साहब मॉडरेट वो बना कायलू भाई को करते ना, वो अच्छे इल्म जी वाले जी, बंदे आपसे बात ये करते हैं। इन्होंने एक सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका बताया है, ये सफा 97 के ऊपर, ये हाँ जी, नजर हाँ आ जी, रहा क्या है? है ये? मुझे अभी नहीं, इधर सही नहीं दिखाया, आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सच्चा खुदा परस्त कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं सच्चे खुदा परस्त बन जाओ। जी और जी जी, सच्चा ठीक है। खुदा परस्त बनने का वो तरीका जो है ना, कादियानियों हाँ को उन्होंने ये बताया, अपने मुरीदों को, मर्जियों को ये बताया। कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर आप अहमदी कह दें तो अच्छी बात है, नहीं नहीं, हमें मैं अच्छा नहीं क्यों लगेगा। कह दूं, अच्छी क्यों बात है? तो अहमदी तो मैं इस्लाम का हूँ हुक्म है ना कि एक भाई, दफा पता अहमदी है तो क्या? मैं हूँ ना, मैं हूँ सुने अहमदी। सुने, एक दफा मैं आपको बताता हूँ वाकया। हुजूर आ- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अच्छा बात यहूदी सुने आया। जरा, सुने, अहमदी सुने मैं ना, हूँ, आप लोग तो कादियानी है ना, आपको हमने कादियानी कहना। अच्छा, नहीं यहाँ पे नहीं, लिखा है जी, मिर्जा मुफ्ती साहब साहब अब हम कादियानियों को, अहमदी हैं, मर्जियों मैं को तो ये मशवरा कादियान में दे रहे पैदा हैं नहीं हुआ ना, मैं कि तो सच्चे खुदा परस्त बनो। सुन भी लेती होती हैं, सा भी लेती हैं कि नहीं लेते? कहती हैं जी, एक कतूरा यानी कुत्ती का बच्चा अस्तगफिरुल्लाह ये बनो। अस्तगफिरुल्लाह। सच्चे खुदा परस्त बनने का तरीका, ये हाईलाइट इबारत यहाँ पे नजर आ जाएगी। तोबा जी जी तोबा, अपनी किताबों सच्चा को नहीं खुदा परस्त मानेंगे बनने का यार। तरीका यह है कि कतूरा बनो। कतूरे से मुराद, ये कतूरा लिखा हुआ है, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह। कतूरा ये लिखा है, कतूरा ये, जी जी और कुत्ती का बच्चा ये लिखा हुआ। और इसको तुम नबी अस्तगफिरुल्लाह। कहते हो? वो कहते हैं दुनिया का हर सब पढ़े कादियानी ना, जो ये बात कतूरा क्या यानी है? कुत्ती का बच्चा नहीं है, वो सच्चा खुदा परस्त नहीं है। वो मुफ्ती पहले साहब मुझे अब आप इबारत बताएं, पढ़े आप ना, सच्चे खुदा परस्त हैं कि नहीं? आप ये इबारत पढ़े ना मुफ्ती साहब, एक लफ्ज अरे आपने वो उसमें पढ़ता हूँ, सुना है? आप मुझे नहीं बताएं प्लीज, तो, आप सच्चे खुदा रमजान में परस्त पढ़ हैं कि लें, नहीं? रमजान में झूठ ना बोले ना भाई मुफ्ती चलो साहब, ठीक हो गया, मैं झूठ हाँ बोल, आप रमजान सच्चे खुदा रमजान परस्त में हैं झूठ कि नहीं? छोड़ दो। पहले ये बताएं। नहीं नहीं, वो अपने लिखा नज़ीर हुआ साहब कुत्ती का लफ्ज लिखा, पूरा पढ़े ना, पूरा तो यार पैराया पूरा ही पढ़ेंगे, पढ़ क्या लेता बात है? हूँ, किताब आपकी, मुफ्ती आप पढ़ साहब लें, आप पढ़ लें। नहीं नहीं, मुझे मुफ्ती बताएं साहब आप सच्चे खुदा परस्त आप हैं कि नहीं? रोजे के साथ मुफ्ती साहब झूठ बोलते हैं यार ना, आप बताए देखेंगे तो, ना छोड़े, मैं मुफ्ती झूठ साहब बोल, प्लीज, सच्चे रोजों खुदा में परस्त झूठ आप ना हैं बोले, कि नहीं? शैतान को बंद कर दे, रोजों को शैतान वजह को क्यों बंद नहीं बंद कर दूं? मिर्जे की किताब की नहीं बारी ना, है, ये तो देखें बंद कर दूं? रमजान के बाद झूठ बोल लेना ना, पहले भी चलो बोला है सही है, कि गलत रमजान बात बात करते हैं अभी प्लीज तो मिर्जा। रमजान मैंने वाली गलती ना ये हो। जो झूठ बोले थे, जो ये झूठ मुफ्ती बोले थे, साहब तो उसका रमजान जवाब में आप आपने झूठ दिया ना कोई बोले नहीं है, ना, हैं? मुझे अच्छा बात को लगेगा कि फिर, मुफ्ती इस्लाम का मुफ्ती, खत्म नबूवत का मुफ्ती अगर रमजान में झूठ ना बोले तो हाँ फिर यार अच्छी नहीं, नहीं वो झूठ झूठ जो नहीं मैंने बोल बोल रहे तो यार, रहा वो हूँ, आपकी नहीं किताबों नहीं, से तो पढ़ उसका के जवाब कौन मैं देगा? ये आपसे झूठ जो बोल रहा मैं हूँ, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुबारक महीना है, इसमें झूठ ना बोलें तो प्लीज। यार मैं जो झूठ बोल रहा हूँ उसका कोई जवाब भी तो दे के नहीं तो देना? आप वो पूरा पैराया पढ़े ना, वो क्या मसला क्या है, कुत्ती और कतूरा क्यों कहा, किस मुफ्ती को कहा हाँ है, किसी को क्या हुआ? वो इस वजह से कहा कि सच्चे खुदा परस्त बनना है, तो उसका कैसे, ना ये तो उसका बात आपने जवाब दिया, पहले ही बार से इतनी ये पेश की मैंने, मुफ्ती इसका साहब भी कोई जवाब नहीं। ठीक इतनी है जी, अक्लमंदी वाली बात तो आप भी नहीं इसकी तरफ करते आ हैं गए। मुफ्ती साहब, प्लीज आज रमजान में तो सच बोलना शुरू कर और यार दें। बताएं तो, अच्छा बताएं, साल में क्या एक ये महीना मैंने होता है, झूठ रमजान बोला था? मुबारक हो। क्या ये झूठ बोला था कि मिर्जा साहब अपने नाम मानने वाले को कहते हैं कि तुम वलदुल हराम हो, हरामी हो, तुम्हारी हाँ औरतें नजीर कुत्तों भाई, से है बढ़ कि गई कौन हैं? सी पहला हवाला झूठ क्या ये है बोला था इसका? मैंने, जो ऐसे ही है, भाई ये झूठ बोला है जो ना? हवाला लगाओगे पढ़ोगे फिर मजा आएगा, ऐसे नहीं होता हवाला पूरा सफा बात तो यहाँ से शुरू हुई, हवाला तुम्हें सबसे सारा पहली पता बात है। ये पेश की मैंने, उसके बाद ये पेश की, नहीं उसके नहीं बाद नहीं, ये एक पेश लफ्ज उसमें से एक लफ्ज आपने पेश मुफ्ती किया, लफ्ज एक साहब। लफ्ज चलो लिखा है चलो आपने जी, लफ्ज। शुरू से ही बात ये शुरू यहूद करते नसारा हैं। ऐसे मैं करते किताब थे, उठा यहूद लूं, मैं नसारा किताब ऐसे उठा करते लूं। थे, जिल्द यहूद 9, नसारा एक लफ्ज जिल्द दिखाते 9 और थे। 14, एक मिनट है, जिल्द 9 हाँ और जी 14। सही, रमजान में सच बोले, अल्लाह का नहीं वास्ता नहीं रमजान में नहीं सच बोले नहीं, मुफ्ती झूठ साहब तो प्लीज। बोल नहीं है ना यार, झूठ पूरा साल आप लोग ये झूठ देखें, ये बोलते हैं, आपकी एक है, रमजान के महीने में तो सच चले बोलते हैं। छोड़ दें यार, पूरा सफा ही पढ़ते आप ये देखें ये नजीर आपकी है, साहब किताब ले आए, आप देखें जरा प्लीज। बताएं हाँ तो जी, हाँ, नजीर साहब, देखिए, ये आपकी किताब। है कि मेरी है? जी जी, हाँ, हमारी किताब है, ये हमारी। आपकी है। इसके सफा यानी जिल्द 9 है, सफा 31 के ऊपर मुझे जाना है। हाँ फिर एक लफ्ज पढ़ेंगे मुफ्ती साहब, आप एक पूरा लफ्ज पूरा पढ़ें। पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। हाँ पूरा, वो वो कह रहे हैं पूरा जो पढ़ेंगे, बात आप हो रही सुने होती है ना प्लीज पूरी यार। पढ़ें, फिर पता पूरी चलता पूरी है। पूरी इबारत पढ़ते। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा पहले मेरा दावा सुन लें। दावा मेरा ये, उस मेरे दावे को आपने गलत साबित करना है, ऐसा ही है? जी जी ठीक है। मेरा दावा ये है कि देखें, मिर्जा कादियानी जब किसी को तबलीग करता था ना, तो तबलीग करने का उसका तरीका ये होता था कि वो गालियां मुफ्ती साहब थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम तो ले लेना, हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग से ले हैं। रहा हूँ, और क्या मैं हमारे- कोई गाली निकाल रहा हूँ यार? कमाल होगी यार।
मेरा थोड़े आप मुफ्ती हैं, अदब आपको आता है कि नहीं आता? कौन सा अदब कैसे कौन सा यार, हम तो उसको जूते की नोक पे रखते हैं। अदब किस चीज का करें मिर्जे कादियानी का? फिर वो देखें जो आप, मोहम्मद देखें, बनने का आप दावा अदब करता है, जो आप कहता है मैं मुफ्ती मोहम्मद पढ़ के में हैं, हूँ, आपको उसका मदद आपको करें। अदब का नहीं पता ना मुफ्ती जो साहब, कहता आपको है अदब का मोहम्मद नहीं में पता। हूँ, वो हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो कुत्ता है ना, उसके मूत के बराबर नहीं है मिर्जा कादियानी। उसका अदब करें हम। अब रमजान में देखा अपनी जुबान गंदी कर वो रहे हैं मेरी आपसे। गद्दी क्या, मैंने आप जो देखें, किताब लिखी है वो ये पूरा देखें, साल जबान गंदी पूरी रहती है पूरी और फिर किताब रमजान में लिख भी दी है गंदी करते हैं कादियानी आप। कलमा, जिसके अंदर मुफ्ती साहब ये प्लीज, हमने हवाले दिए तुम लोगों की किताबों रमजान में के, गंदी जबान असल ना करें स्कैन आप। लगाए हैं। मिर्जा कादियानी कहता है मोहम्मद मैं हूँ, ये मुफ्ती कुरान साहब मेरे आप ऊपर नाजल हुआ है, असल शरीयत को मुकम्मल मैंने आके किया है। मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये थे वो झूठ बोल रहे शरीयत हैं, को ये अधूरा झूठ बोल रहे हैं, छोड़ के दुनिया से चले गए थे। झूठ बोल रहे हैं, बताएं, झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती अब साहब, इस पे झूठ बात शुरू बोल कर रहे लूं, हैं। इस पे शुरू ये कर लूं। अल्लाह के लिए रमजान मैं में झूठ किताबें ना खोल बोल खोल के रहे हैं सामने रख रहा हूँ। हम एक लफ्ज पढ़ते हैं, आप एक लफ्ज और पढ़ते हैं, ये किताब आपका माइंड रोस्टर का यानी मुरब्बी, जब ये मैं मुफ्ती किताब साहब, आप लिख रहा था वो दोबारा कह रहा कोर्स था करें। मुफ्ती ये किताब सबसे मुफ्ती पहले तूने मुझे भेजनी है, जब मुफ्ती तू साहब, मेरे आप पास दोबारा भेजेगा तो मैं कोर्स, इसका जवाब दूंगा। मुफ्ती का कोर्स किताब को दोबारा 10 करें साल आप। से भी ज्यादा करसा हो गया राउंड बोर्ड। नहीं सुने मुफ्ती साहब, और आप सुन झूठ ले, बोलते हैं, बीच में आप बोले झूठ जा रहे बोलते हैं हैं, दोबारा चुप है। कोर्स करें आप, एक दोबारा ये मिनट, कोर्स। किताब मुफ्ती पीडीएफ के साहब, अंदर मौजूद, सबसे पहले मुफ्ती अल्लाह साहब, की कसम माइंड रोस्टर मीर सलीम को ये किताब मैंने सेंड की थी, इसकी पीडीएफ मुफ्ती साहब, आज एक सतर का जवाब तक नहीं है आप लोगों के पास, एक सतर तक का। मुफ्ती साहब एक मिनट झूठ देंगे बोलते प्लीज, हैं आप, एक एक मिनट लफ्ज सिर्फ। बता के मुफ्ती झूठ साहब बोलते हैं आप। नहायत माजरत के साथ एक मिनट ना, अपना नसीर साहब एक जी, बात जी। का जवाब देंगे मेरी? हाँ जी जी, हुक्म करें, हुक्म करें। देखें नसीर साहब, गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब ने 10 साल से एक चैलेंज किया है, हाँ जी, तो 10 साल में आपकी जमात में से किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया, क्या ये ज्यादती नहीं है? ये बहुत बड़ी जाती है। तो मुफ्ती साहब इतना इल्म रखते हैं कि हमारी जमात के पास इतना इल्म है नहीं ना जी। नहीं नहीं, बात वो नहीं इनका कर रहा, इल्म बहुत ज्यादा है। आप मजाक ना करें ना, आप बात का नहीं जवाब सीरियस दें में कह रहा हूँ, ये दलील के गालियां इतनी अच्छी देते हैं, प्यार से देते हैं और इतने यार, तरीके से देते हैं। बात ये मुफ्ती गाली बने की नहीं हो एक्सपर्ट रही। इसीलिए बात हैं, इनका देखिए, जवाब मेरी कौन बात दे सुने सकता है? यार, जी, बात सुने नजीर साहब, बात सुने, बात सुन ले प्लीज। गालियां मिर्जा साहब ने जो दी हैं उस पे आप क्यों नहीं गौर करते? उन्होंने 10 साल से चैलेंज किया है, 10 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, और नहीं आपकी बहुत जमात भाई में बड़े भागे बड़े हुए हैं, तमाम ब्राडों से ये भागे हुए हैं। अहमदी ब्राडों पर ये ठहरते नहीं, एक मिनट नहीं ठहरते। आए ना पता चल जाएगा। चलो मुफ्ती अभी ले साहब जाते अपनी हैं कोई अहमदी रिकॉर्डिंग ब्राड। दिखाएं जो अहमदी ब्राडों पर इन्होंने उनको शिकस्त दी है। इन्होंने रिकॉर्ड लेकिन की होगी, मुझे चलो दें। भाई आप सिर्फ मिर्जे इस के बात- कैरेक्टर पर क्यों मीर नहीं सलीम बात साहब के करते? साथ मिर्जा या नादिर कौन भाई के है? साथ या किसी और के साथ इनकी कोई वो हुई है, बहस हुई है, वो जरा ये चलाएं इधर के हमने शिकस्त दी है उनको। चलें जी, पता चल ओए जाएगा। आपके मुफ्ती मुबशर कालू से हुई है, जाके मेरा यूट्यूब चैनल खत्म वो टाइम देखो। लगाए ना मेरे तुम्हारे सवाल का खलीफा जवाब- मिर्जा मसरूर के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। तुम्हारे मिशनरी मुरब्बी जो है ना वो अंसर रजा के साथ वो दौड़ा हुआ है मुझसे मुनाजरे के अंदर। मेरी ओए बात का तुम्हें जवाब पता ही नहीं कौन है दिया हमारी आपने। तारीख का। ओए अहमदिया रेडियो इधर लगाए के अंदर ना, हमने इधर भी कनाडा लगाए। के ऐसे रेडियो चलाया था, 2 साल तक चला था। इधर लगाए एक ना, दिन जो अंसर आपने रजा शिकस्त बैठता दी था, है, एक लगाए दिन ना। मैं बैठता था। जो और चैलेंज उसी आपने दिन किया, मुफ्ती साहब लगाए ना, उसी प्लीज दिन लगाएं। उसकी मंजी ठोक देते थे हम। मुफ्ती साहब प्लीज दौड़ा लगाएं हुआ है इधर। वो, हमसे दौड़ा हुआ है, भागा हुआ है। तुम आप लोगों के लगाएं सारे इधर, मुरब्बी इधर। भागे हुए हैं मुबशर शाह से। इधर लगाएं ना, आप वो लगाएं जो आपने शिकस्त दी है, उनको रिकॉर्डिंग लगाएं जरा, पता कौन चल सी जाएगा। किस्त? खत्म है। जो उनके वो साथ मेरा आप 10 पूरा साल- चैनल है, मेरे चैनल जाके बहुत देखो, से साहब। उसका एक एक वीडियो जो है ना किस्त ए, वाली खत्म है, नबूवत जाओ वालों, जाके रमजान देखो। में झूठ ना बोलो। खत्म नबूवत वालों, चलो रमजान में फिर प्लीज ये झूठ एक ना लफ्ज बोलो, पकड़ा है जी, रमजान में। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो रमजान यार। बहुत मुबारक महीना है, इसमें तो बस रुक जाओ। 11 महीने यार, क्यों बोलो? बाबर आप- साहब नासिर आप साहब- एक्स का यानी आप इनकी नफ्सियात ज्यादा समझते हैं, तो नहीं, नहीं, डिबेट करवाएं किसी मौजूद मुफ्ती साहब प्लीज प्लीज, ये मुफ्ती सिर्फ साहब एक लफ्ज झूठ इन्होंने पकड़ा, झूठ ना बोले, डिबेट झूठ करवाएं तौबा मेरी से इनके तौबा कर साथ, लें, अभी झूठ से करवाएं। तौबा कर लें, झूठ से ये तौबा। गौर ये ए, मैदान ए मुफ्तियान ने खत्म किसी नबूवत मौजू झूठ से तौबा पर कर लें। मुझे दुनिया का नज़ीर हर भाई, मौजू कबूल है। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट जी। बाबर बाट साहब अस्सलाम वालेकुम जी वास्तव अपना कालू साहब एक मिनट बट बात साहब सुनो जरा मैंने इस प्लीज। बंदे से बात नहीं करनी, ये हेलो। गुस्ताख है, भाग इसको गया है ना? यहाँ तो नीचे उतार दें, यहाँ मैं चला जाऊंगा। व्हाट्सएप भज गया नहीं, जेड़ा नहीं। कहन डया मेरे को बट साहब ये बंदा गुस्ताख है, मैंने इससे बात नहीं करनी। आपने मुझे ठीक भी है, नहीं ठीक। अभी तक एडमिन बनाया, नहीं तो मैं इसको खुद रिमूव करता। नहीं, मैंने समझा कि शायद आराम से बात करें, लेकिन वो नहीं समझते मैंने तो इससे फिर- करनी ही नहीं है बात, ये आराम से करे, ये मेरे ऊपर फूलों की निछावर करे, मैंने इससे बात करनी ही नहीं है।
मुफ्ती साहब 10 साल का ये चैलेंज आपको बता गुस्ताख देता आदमी हूं। है, ये शातिम गुस्ताख रसूल नहीं। है। हाँ जी, वो इससे बात करनी नहीं है मैंने। हाँ जी। जी जो ठीक हो आपको गया देखे मुफ्ती जो साहब। दलील समझ नहीं आती आप उसको गुस्ताख करार दे देते हैं। ये बाबर बता भट्ट आपको साहब दलील कोई इस नजीर कादियानी मुरब्बी से कोई डिबेट करवाएं किसी मौजू के ऊपर, भाई वो झूठ टाइम ना फिक्स बोले। करें, 1 मिनट या 2 मिनट ये बात करें, फिर मैं करूं। इस तरीके से शूटर भाई एक आए हैं, बेहतरीन ये किस्म की बोले कोई कि ये डिबेट करवाएं। शार्प शूटर भाई इधर मुफ्ती साहब कहें कि झूठ ना बोले, रमजान में झूठ ना बोले प्लीज, इनके मैं रिक्वेस्ट कर देंगे आप। मुफ्ती साहब के हाथ में मिर्जा साहब के 200 झूठ पकड़े हुए हैं भाईजान। नहीं वो देखा अभी एक लफ्ज बताते हैं ना, एक लफ्ज बता के ना नहीं, वो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ इस किताब का। नहीं कब तक जवाब आप देंगे? वो ये पढ़कर सुनाए ना, इन्होंने कहा मैंने शिकस्त दी है सबको, वो आप पढ़ी खुद हुई। पढ़ें। वो यार मुखत्मे नबूवत टाइम भरा हुआ है चैनल, आप कोई नहीं इधर भी सुना दिए करें ना, इधर सुनाए जरा, ये अपनी शिकस्त जरा सुनाए। नजीर भाई इतना लंबा मनाजरा ये कैसे सुना सकते हैं? आप जाके वहाँ पे खुद सुन लें। नहीं वो कोई आधे 15 मिनट की बात आधे घंटे की होती है, इधर सुना देना प्लीज। नजीर भाई आपका हर बंदा मुफ्ती साहब से भागा हुआ है, इनको ऊपर नहीं लेता, ठीक है यार ये रमजान में क्यों आप भी शार्प शूटर भाई ये झूठ बोल रहे हैं यार? रमजान में मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे आप बताएं। तो ये लोग जो भागे हुए हैं उधर कोई, मैं तो इनको देखता हूँ उधर मुफ्ती जब भी कोई जाता है कोई नहीं ठहरता, एक मुफ्ती 2 मिनट 3 मिनट ठहरता है बस। नादिर यार भाई शार्प शूटर कोई डिबेट करवाएं यार किसी मौजू के मैं ऊपर, कराता हूँ मुफ्ती साहब, मैं कराता हूँ। एक कोई फिक्स मिनट करें कोई डिबेट। नहीं शार्प शूटर साहब देखें उधर ब्राड पे मैं देख रहा हूँ 3 मिनट ठहरते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं 3 मिनट सिर्फ बात करते हैं, भाग मुफ्ती जाते हैं। साहब को वो नीचे उतार देते हैं, एक बंदा इनसे बात नहीं मैंने 10-15 मुफ्ती पाकिस्तान के देखे हैं, बड़े बड़े जैद मुफ्ती, वो आए हैं 2 मिनट 3 मिनट बात की और भाग गए। वो अल्लाह का वास्ते, आप मुफ्ती साहब को कितने अरसे से जानते हैं? मुझे ये मैं 10 साल से जानता हूँ इनको। मैं मुफ्ती साहब को तकरीबन 13-14 साल हो गए जानता हूँ। आज तक यार यूट्यूब भरी हुई है, कोई देखो जुबानी बात तो नहीं कर रहे नजीर भाई। आप देखें मुझे लग रहा है मुफ्ती साहब झूठ बोल, रमजान में झूठ बोलते हैं यार, आपको लग रहा है ना, लेकिन एक चीज जिसका एक मतलब गवाह मौजूद है, गवाही आप यूट्यूब पे जाके इनके चैनल पे जाके चेक कर लें। मैंने 10 साल से इनको सुन रहा हूँ ना शापर भाई, ये जो है ना शूटर भाई, ये जो है ना वो मैंने इनके सुने सारे। यार नबील भाई कोई करो ना यार, डिबेट शुरू कराओ ना यार, गप्पां दे विच वक्त लग जाना है। नहीं इनको जोर से डिबेट शुरू कराओ, छड्डो तुसी ये गो है मैदान। मुफ्ती साहब मैं तो रिक्वेस्ट करने आया था कि झूठ ना बोले, बस डिबेट नहीं करनी, आप रमजान में रुक जाएं, किसी भी मौके किसी भी रमजान में रुक जाएं प्लीज, रमजान में झूठ ना बोले, अल्लाह का वास्ता इस्लाम पर चलें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें, झूठ ना बोलें बस। अच्छा नजीर भाई मैं एक बात आपसे आसिफ गोंदल साहब ये जो ले लें मुफ्ती साहब के हाथ में सुने ना, मुफ्ती साहब ये आसिफ गोंदल साहब हैं, कोई इनको ले लें। जी ले बिल्कुल, लेकिन एक बंदे से पहले डिबेट फिक्स कर ले ना। अभी बट साहब ना और किसी को ले, नजीर साहब से अभी हम डिबेट करेंगे किसी एक मौजू के ऊपर। नहीं मौजू पे नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करने आया था मुफ्ती साहब, मौजू पे नहीं करनी इन्होंने। शार्प शूटर आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनटों में कट्टी कट्टा कड्डो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नजीर भाई जी जो आसिफ भाई, एक मिनट, ये आसिफ भाई हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा नजीर साहब, ये जो इनके हाथ में किताब पकड़ी हुई है जिसका ये कह रहे हैं कि मैंने 10 साल से चैलेंज किया, वो किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या इस किताब का पहला सफ़ा जो है उसी पे डिबेट कर ली जाए? नहीं कि इनकी मुफ्ती साहब की अपनी किताब कह रहे हैं। हाँ जी। नहीं मुफ्ती साहब को मैंने 10 साल से सुना है, किसी एक का जवाब नहीं दे सके हिंदी ब्रांडों पर। ये किताब तो इन्होंने कारोबार के लिए बनाई है ना, अपने खत्म वालों को बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। ये तो यार मुझे तो फ्री में भेजी ऑस्ट्रेलिया में, मुझे से तो पैसे एक मिनट ये कारोबार वाला धंधा, ये नहीं कुरान हदीस से बात करें, कुरान हदीस से बात, मुफ्ती की किताब से बात नहीं। मुफ्ती साहब ये जो शार्प शूटर साहब बार बार कह रहे हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप गुस्सा करें और इसको गाली शाली दें और ये कहे कि देखो जी मैं तो गाली अच्छा ओ यार अल्लाह का नाम ले, कोई डिबेट कराओ यार, किसी मौजू पे कराओ यार। मुफ्ती साहब ने पहले मलफूजात दिखाए थे, मलफूजात दिखाए, उसमें कोई जानदार किस्म की डिबेट होनी चाहिए यार, कोई पता चले किसी को कोई। मुफ्ती साहब ने कादियानी जो है यार इधर देखे चले सारे चुप हो जाओ, मैं नदीर साहब ने गल करना, किसी ने बसदा रोग नहीं। नदीर साहब दुनिया के किसी मौजू पर आप मुझसे डिबेट चले, मौजू आपका मुफ्ती साहब आपके पास मौजू दे, कोई मौजू दे, मेरे पास गालियों वाला इल्म, कोई एक मौजू दे दे, कोई एक मौजू दे दे।
मुफ्ती साहब आप गालियों के इल्म में बहुत आगे हैं। मैं तो अच्छा, बहुत मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ये पैनल के अंदर मौजूद हैं दोस्त, किससे बात करना चाहती हैं? नहीं, मैं आपसे करना चाहता हूँ, पर आप ये अहद अच्छा, करें होस्ट रमजान में कि मैं होस्ट पर गालियां नहीं आपको निकालूंगा, इत्मीनान फिर है, वो मैं बात गालियां नहीं देते, उनसे बात करेंगे। नहीं आप अहद करें कि मैं- अच्छा, अल्लाह से अहद करें। नवीद शार्प शूटर से करेंगे बात। नहीं वो मैंने नजीर साहब, आप किसी भाई से भी बंदा बात ना भी करें। आपका, मौजू भी आपका, नजीर बताएं तो साहब, सही किसी तरफ आए नजीर तो मैं सही। मुफ्ती साहब नजीर साहब, यार बकाया सारे चुप हो जाओ यार, मेहरबानी करो। मैं मुफ्ती साहब से नजीर साहब, आप किसी से भी बात ना करें। नजीर साहब, आप किसी से भी बात ना मैं करें। मुफ्ती साहब से बात करता हूँ, पर वो ये अहद करें रमजान में कि आइंदा जिंदगी में गालियां नहीं निकालेंगे। चले तौबा करें। जी, मैं अहद करता हूँ कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी गाली नहीं दूंगा। जज़ा चले ये बात फिर करें अब आप देख सारे सुन रहे खत्म नबूवत वालों, अगर आज के बाद मुफ्ती साहब ने कहीं भी किसी गाली निकाली तो ये लेकिन अपने मिर्जे की किताबें पढ़ने की इजाजत है मुझे। हाँ जी पर ये अपनी क्या ये जो है ना वो जो वो अच्छा, वो इजाजत है ना, मिर्जे की किताबें पढ़ने की तो इजाजत है ना। फिर देखें आप रिस्पेक्ट से भी बात नहीं करते ना मुफ्ती अच्छा साहब। फिर चल मुझे अच्छा यार, नहीं लगता मिर्जा आपको। साहब कह लेता हूँ, मिर्जा साहब की ये किताबें जज़ाक पढ़ने अल्लाह। की इजाजत है जी, मुझे जी, कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, है। बिल्कुल। अच्छा, जज़ाक ये अल्लाह। जो रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर मिर्जा साहब ने फरमाया है, हमारी हाँ फतह जी। का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा इसको वलदुल हाँ। हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। हाँ जी, अब ये मैंने गाली दी है कि मतलब सच पढ़ा है मैंने? अगर वो पढ़ा है आपने, पढ़े पूरा हवाला पढ़े, क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा, क्यों पूरा कह रहे हैं? हवाला पढ़े। ये ले ये जी, भी पूरा कौन हवाला जिक्र अब क्या मैं हो रहा पढ़ने है? लगा हूँ, शुरू से ये सुनिएगा। जिक्र क्या हो रहा है? ये पढ़ अच्छा के पूरा सुनिए, ये जिक्र अब माइक पूरा तो म्यूट करे ना, चुप तो करे। हाँ तो ये मैं पढ़ने लगा हूँ। सफ़ा 31 का पहला सफ़ा लफ्ज है बल्कि। बल्कि बराबर सख्त दिल और दुश्मन इस्लाम रहा और मसीह को बराबर खुदा ही कहता रहा। फिर अगर हम इसी वक्त बिला तवक्कुफ 2000 रुपया ना दे तो हम पर लानत, और हम झूठे और हमारा इल्हाम झूठा। और अगर अब्दुल्ला आथम कसम ना खाए या कसम की सजा मियाद के अंदर ना देख ले तो हम सच्चे और हमारा इल्हाम सच्चा। फिर भी अगर कोई तहक्कुम से हमारी तकजीब करे और इस मियार की तरफ मुतवज्जे ना हो और नाहक सच्चाई पर पर्दा डालना चाहे तो बेशक वो वलदुल हलाल और नेक जात नहीं होगा। ये अब्दुल्ला आथम को मिर्जा साहब जो है ना गालियां निकाल रही हैं, ठीक है। अब वो ना पहले नाल ज्यादा उन भुगतनी पै जानी जे। पहले तो एक गाली थी, अब गालियों पे गालियां। अच्छा, ये पहली गाली आ नहीं, आप गई वो है। भाई मैं पढ़ रहा हूँ आगे, कोई ना बोले बीच में यार, क्यों बोल रहे हैं यार, कौन बोल रहा है? सुनते जाए। अच्छा जी, होगा ख्वाम ख्वा हक से रू गर्दान होता है और अपनी शैतनत से, ये दूसरी गाली आ गई है, शैतनत से कोशिश करता है कि सच्चे झूठे हो जाएं। अब इससे ज्यादा साफ और कौन फैसला होगा कि हम 2 कलमों के मोल में खुद अमृतसर में जाकर 2000 रुपये देते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला आथम अगर दर हकीकत मुझे काज़िब समझता है और जानता है कि एक जरा भी इसने इस्लामी अजमत की तरफ रजू नहीं किया तो हम जरूर बिला तवक्कुफ इबारत मज़कूरा बाला के मुआफ़क इकरार कर देगा, क्योंकि अब तो वो अपने तजर्बे से जान चुका कि मैं झूठा हूँ और मसीह की हिफाजत को इसने मुशाहदा कर लिया। फिर इस मुकाबला से इसको क्या खौफ है? क्या पहले 15 महीनों में मसीह जिंदा था? ये देखें, ये मिर्जे कादियानी ने उस वक्त गालियां निकालनी थी जब मिर्जा कादियानी को अब्दुल्ला आथम ने शिकस्त दी थी, और मिर्जा कादियानी ने फिर आगे कहा ये 15 महीनों के अंदर मर जाएगा। तो मिर्जा कोई नहीं, अब्दुल्ला आथम को नहीं सी मरिया। हाँ जी, क्या पहले 15 महीनों में मसीह जिंदा था और मिस्टर अब्दुल्ला आथम की हिफाजत कर सकता था और अब मर गया है इसलिए नहीं कर सकता? जबकि ईसाइयों ने अपने इश्तिहार में ये कहकर ऐलान दिया है कि खुदावंद मसीह ने मिस्टर अब्दुल्ला आथम की जान बचाई, तो फिर अब भी खुदावंद मसीह जान बचाएगा। कोई वजह मालूम नहीं होती कि अब मसीह के खुदावंद कादर होने की निस्बत मिस्टर अब्दुल्ला आथम को कुछ शक और तरद्दुद पैदा हो जाए, और पहले वो शक ना हो बल्कि अब तो बहुत यकीन चाहिए, क्योंकि इसके खुदावंद और कुदरत का तजर्बा हो चुका, नीज हमारे झूठ का तजर्बा। लेकिन याद रखो कि मिस्टर अब्दुल्ला आथम अपने दिल में खूब जानता है कि ये बात सब झूठ है और इसके मसीह ने बचाया जो खुद मर चुका, वो किसको बचा सकता है? अब ये देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
की तौहीन आप कह रहे थे मिर्जा कादियानी की अदब 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 से बात करो। वो मिर्जा कादियानी मसीह का नाम इतनी बेअदबी से लेता है, अल्लाह के सच्चे नबी को इतनी वो तजलील करता है, इनकी तहकीर करता है और इतने जिल्लत में अल्फाज से याद करता है। मिर्जे का नाम अदब 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 अदब। अच्छा जी आगे जी, बचा सकता है और जो मर गया वो कादर क्यों कर, और खुदावंद कैसा, बल्कि सच तो ये है कि सच्चे और कामिल खुदा के खौफ ने इसको बचाया। अगर अब नदान ईसाइयों के तहरीक से बेबाक हो जाएगा तो फिर इसके कामिल खुदा की तरफ से बेबाकी का मजा चखेगा। गर्द अब हमने फैसला कि साफ साफ राह बता दी और झूठे सच्चे के लिए एक म्यार पेश कर दिया। ये म्यार है मिर्जे का, हाँ ये गालियां म्यार है। वो कह रहे हैं मैंने म्यार पेश कर दिया। अब जो शख्स इस साफ फैसले के बरखिलाफ शरारत और अनाद की राह से बकवास करे, ये देखें अब बकवास वो ये तरीका है बात करने का। अब्दुल्ला आथम को जो ईसाइयों का पेशवा था उस टाइम, उसको वो कितने गलत जुबानी से वो मिर्जा कादियानी उसको पुकार रहे हैं, हाँ जी, राह से बकवास करेगा और अपनी शरारत से बार बार कहेगा। ये देखे गाली पे गाली मिर्जा कादियानी दे रहे कि ईसाइयों की फतह हुई और कुछ शर्म और हया को काम नहीं लाएगा। ये देखे, हाँ जी, लाएगा और बगैर इसके के जो हमारे इस फैसला का इंसाफ की रूह से जवाब देगा, इनकार और जुबान दराजी से बाज नहीं आएगा। अब ये वो इबारत आ गई है और हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। बस हलाल ज़्यादा बनने के लिए वाजिब ये था कि अगर वो मुझे झूठा जानता है, और यहाँ पे पूरा सफा खत्म हो गया। अब करो, अब ये कितनी चीजें आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजों के ऊपर मैंने निशान लगा दिए। इस पूरे सफे के अंदर 10 चीजों के दो जवाब। चलो एक मिनट मुफ्ती साहब, ना अपना नसीर साहब अब माइक खोलें और आप बताएं कि ये जो पूरी तहरीर में मिर्जा साहब को किसने हक दिया, अल्लाह नंगी उन्होंने गाली निकाली हैं, किस बेस पे निकाली हैं, अब आपने ये जवाब देना है प्लीज। जी जी, ये इसमें देखें जो अब्दुल आथम कौन था, वो गुस्ताख रसूल था, गुस्ताखियाँ करता था आम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम के बारे में। तो आप उनको कहें कि आप उनको दुआएं देनी चाहिए और आप उनकी हमायत करें। अब्दुल आथम की आप हमायत कर रहे हैं, उसको उसके वो कह रहे हैं कि उनको गुस्ताखी कर रहे हो। वो तो गुस्ताख रसूल था, उसकी पढ़े ना हिस्ट्री। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि जिस बंदे ने, आप हमें ये बताएं कि जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया वो गालियां दे रहा है, क्या देना चाहिए? नहीं, मुझे ये बताएं कि कुरान करीम में जितने भी अंबिया गुजरे हैं, किसी अंबिया ने गाली दी हो, बताएं। नहीं, कुरान करीम ने ऐसे लोगों को गाली दी है कि नहीं दी है जो नबियों के मुखालिफ होते हैं और उन पर तौहीन के इल्जाम लगाते हैं? मैं नबियों की बात कर रहा हूं, किसी नबी ने किसी ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ कि जी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता ਤੇ ਸਾਡਾ कुत्ता टॉमी। अब आप ये सफाइयां देर पहले आप कह रहे थे कि जी अब मिर्जा साहब को जो लोग झूठा समझते हैं वो अगर गाली देते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो झूठे को नहीं, बात सुने, वो अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल था, आप उसकी हमायत कर रहे हो। ढेर सारे लोग मेहरबानी करें, अभी कोई बीच में ना बोले। मेहरबानी करें, बात गडमड हो जाएगी, मेहरबानी करें, माइक म्यूट करें। मुफ्ती साहब एक मिनट चुप हो जाए, आपने पढ़ा, मैं खामोश। अब्दुल आथम कौन था यार? अब्दुल आथम कौन था भाई? गुस्ताख रसूल था, उसकी हमायत को डिबेट कराओ, 1 to 1 दी डिबेट कराओ, रसूल की हमायत करते हो। दूसरे सारे बंदों को भले आप नीचे उतार दें, आप गम खाते हो। अब्दुल आथम का आप होस्ट हैं, मेहरबानी करें अपनी होस्टिंग के कुछ। जी नसीर साहब एक मिनट यार, एक मिनट मैं बात अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल था, उसको गाली। एक मिनट यार, बात सुने मेरी, प्लीज़ मेरी बात सुने। ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुफ्ती साहब और नसीर साहब ये दोनों बात करेंगे, ना मैं बोलूँगा ना आप लोगों में से कोई बोलेगा। आपकी मेहरबानी है। मुझे मॉडरेटर बना दें यार, वो मुझसे नहीं बना जाता, मैंने तो पहले भी कहा, मुफ्ती साहब को भी बनाया तो सेटिंग वो आते ही नहीं, नाम ही नहीं आ रहे। एक मिनट यार, मैं देखता हूँ इसमें आपका नाम आता है। सेटिंग में जाएं, मैं बताता हूँ, सेटिंग में जाएं। ये मैंने नीचे जी लिखा है, कमेंट किया जी लिख के। नहीं मेरे नाम के ऊपर क्लिक करें आप। हाँ, इस पे इससे भी बन जाता है।
मुझे ये बताएं, मैं मॉडरेटर पे आ गया हूँ तो यहाँ तो सिर्फ 4 बंदे हैं। आप नहीं नहीं, मेरे नाम ये जो मैंने कमेंट किया उस पे क्लिक करें। नाम अच्छा पे अच्छा क्लिक करें, वहां से आ जाएगा ऐड मॉडरेटर। अच्छा ये अच्छा मुफ्ती वहां साहब पे ने आ जाता रमजान है में ऐड 2 गुनाह मॉडरेटर। कर दिए, 2 गुनाह। मुफ्ती साहब ने 2 गुनाह रमजान में कमा लिए, एक झूठ बोला, एक अब्दुल आतम गुस्ताख रसूल की हमायत कर रहे हैं। ये 2 गुनाह और मुफ्ती यार साहब ने अच्छा नजीर साहब मैनेजमेंट नजीर कर साहब, लेने दे, एक थोड़ी सी मासूमाना मेहरबानी सवाल है। करें जरा। डिबेट आपकी साफ सुथरी डिबेट करवाते हैं हम, थोड़ा नहीं सा नहीं, हमें बस टाइम दे। डिबेट बस ये जी आपने मैं दो निकाल रहा आपने हूँ। 2 एक झूठ और एक गुस्ताखी कर बट दिया। साहब गुस्ताखी कोई रसूल को साफ आपने सुथरा हमायत ना कर दी। इंसाफ के नाल तुसा दोवां नू बराबर बराबर टाइम देना है। जी ठीक है जी, अब्दुल्ला ठीक है, 1 आतम मिनट मैं डिबेट गुस्ताख कराओ, रसूल है, बेहतरीन जी डिबेट कराओ। अब्दुल्ला आतम बेहतरीन, 1 गुस्ताख मिनट। रसूल है। मुफ्ती साहब आपने उसकी चले हमायत अब कर दी। नजीर साहब को आप मौका दें, मैंने काफी लंबी चौड़ी इबारत भी पढ़ी और ये वो, और भाई उनका आधी टाइम से शुरू आधी करें। से ज्यादा दुनिया तो जोन सी है वो मिर्जे को जोन सा वो गुस्ताखी रसूल मानती है, तो उसको फिर गाली देना जायज है। नहीं नहीं, आप तो जो ये साबित करें ना, आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना, आप सामने सामने झूठ बात करते हैं, गलत आसफ बात। साहब आप डिबेट करना चाह रहे हैं नजीर साहब से? अब्दुल्ला आतम गुस्ताख नहीं, रसूल आसफ था, साहब को मुफ्ती कर साहब ने लेने उसकी दें, हमायत उनको कर दी। शायद कोई अब्दुल्ला आतम गुस्ताख तो रसूल था, क्या। मुफ्ती साहब ने उसकी नहीं, हमायत एक मिनट कर दी। नजीर साहब, 1 मिनट रुक तो जाएं। आसफ हाँ, साहब आप बात करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, आप लोग गुस्ताख रसूल की हमायत करते हो, मैं नहीं बात करता भाई। आप नहीं, लोग कोई बात नहीं, अब्दुल्ला आसफ आतम की साहब हमायत आपसे करते बात हो। करना चाह रहे हैं तो इनकी करा देते हैं डिबेट। इस ब्राड पे कौन अब्दुल्ला आतम की हमायत करता है जो गुस्ताख रसूल है? साहब बताएं कि अगर हमायत करते हैं मैं जा रहा हूँ, या आप लोग गुस्ताख रसूल की हमायत कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं बात नहीं करता। अब्दुल्ला आतम गुस्ताख रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता था, इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करता था, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करता, गुस्ताख अच्छा रसूल नजीर था। साहब, एक आप क्वेश्चन है, उसकी हमायत मासूमाना कर रहे हो, क्वेश्चन है। मैं नहीं, मैं नजीर नाराज होके जा रहा हूँ भाई। आप लोग गुस्ताख रसूल नजीर की हमायत साहब कर रहे बहाने ना खोजो, नजीर साहब बहाने ना खोजो, बात सुनो मेरी बात सुनो। सिर्फ एक मासूमाना सवाल है। हो। नहीं, आतम मासूमाना गुस्ताखी गुस्ताख करते हैं रसूल आप था, लोग। चले ठीक है, मैंने मान लिया आतम गुस्ताख रसूल था, ठीक है मैंने मान लिया। हाँ, जज़ाकल्लाह। लेकिन मुफ्ती साहब से भी बनवाएं, मुफ्ती साहब से सुने भी। ना, सुने मेरी बात सुन लेना, मेरी बात हाँ सुने जी। नजीर साहब। क्या ये जरूरी है कि आतम की गुस्ताखी की वजह से हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहें? नहीं, नाउजुबिल्लाह, कहीं गुस्ताख भी नहीं कहा, आतम है, कहीं भी नहीं गुस्ताख कहा, आतम है। नहीं, कहीं भी ईसा नहीं तो कहा। हमारे भी नबी है ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तो अंबिया फिर हम लोग मौजूद हैं। उनकी गुस्ताखी क्यों करें? आपके हज़रत मिर्जा मसीह साहब ने तो वही काम किया हुआ ना, नहीं किया, ईसा कहीं भी नहीं हुआ। अलैहिस्सलाम के बारे में जो ना वो की गुस्ताखी की हुई नहीं, है। वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनका मसील अपने आप को कहते हैं, उन्हीं के रंग पर आए हैं, वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। ऐसे आप लोग गलत बयानी करते हैं ना। अच्छा जी, और मुझे ये आप बताएं अब्दुल कि आतम, ये मुफ्ती साहब आतम तौबा बड़ा करें, अब्दुल आतम गुस्ताख की हमायत रसूल की था है, या तौबा गुलाम करिए। अहमद बड़ा गुस्ताख रसूल था? नहीं, मुफ्ती गुलाम साहब अहमद तो तौबा करें, आतम से गुस्ताख ज्यादा रसूल बड़ा की हमायत गुस्ताख की है। रसूल हुआ है। ये मुफ्ती अच्छा, साहब तौबा करें, मुझे गुस्ताख ये रसूल की बताएं कि हमायत की है। दुनिया में गुलाम अहमद से बड़ा कोई गुस्ताख रसूल बता दे मुझे, इनाम ले लें। भाई आप खामोश हो जाएं, आप मुफ्ती साहब से बात तौबा करवाएं। मुफ्ती साहब ने गुस्ताख रसूल की हमायत की है, नहीं तौबा करवाएं देखे, रमजान में। गुलाम अहमद से बड़ा कोई गुस्ताख रसूल मुझे ला के दिखाए दुनिया में। ओ भाई, आप तो उससे भी बड़े गुस्ताख खुद कोई इंसान हो, ओ आपके भाई आपकी जानना है ज़बान तो, ओ इसी भाई तरह जानना है, है आप तो खामोश जाओ हो जाएं। भाई, ओ भाई जानना आपने है तो भी जाओ, ठीक है। रमजान में गाली देनी मिर्जा है। को किसी ने नहीं मानना, ठीक है। मिर्जा को किसी ने नहीं गुलाम मानना, अहमद जानना से है तो बड़ा जाओ। गुस्ताख रसूल सबसे आज तक बड़ा कोई हुआ ही गुस्ताख कोई नहीं। मिर्जा था, सबसे बड़ा गुस्ताख मिर्जा था, ठीक है। उसको गालियां दें तो फिर वो आपको तकलीफ होती है। और 1 एथम को मिनट कोई यार। सपोर्ट नहीं कर रहा, एथम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हम जो मिर्जा ने गालियां दी हैं हम ये उसकी मुफ्ती बात साहब कर ने रहे हैं। की है, मुफ्ती साहब ने उनकी हमायत की है, वो गुस्ताख उन्होंने कोई रसूल है। सपोर्ट नहीं की, उन्होंने ये कहा, आपके उन्होंने भाई ने ये माना कहा, है, से मुनाजरा आपके आ भाई ने गया माना था। है कि हाँ, वो गुस्ताख रसूल मिर्जे है। का उन्होंने साला मनाजरे की जो है वो बात की सही है हो कि गया था, सगा मनाजरे साला। में मिर्जे ने गालियां दी। उन्होंने ये ये कहा कि रमजान में मिर्जे ने तौबा गालियां करें भाई, और गुस्ताख जब रसूल की मिर्जे का मुफ्ती साहब ने साला हमायत सही कर हो दी। गया तो वो आए थे मिर्जे के घर के बाहर, आतिशबाजी की थी उन्होंने मुफ्ती साहब ने कागज को गुस्ताखी बाहर कर दी है निकालो, भाई। और मुफ्ती साहब मिर्जा ने शायद घुस गया था शातियत जहां से की है। निकला था। मुफ्ती साहब ने रमजान में शातियत की, अब्दुल आतम गुस्ताख रसूल की हमायत कर दी। ये भाई बहुत बुरे, सुनो भाई, ये मुसलमान। नसीर साहब अच्छा मेरी जी, बात सुने, गुलाम आपने अहमद को कहा बंद था कर दें जी, रमजान है, गुलाम अहमद को वाकई बंद कर दें, रमजान में बंद होना चाहिए ये। 1 मिनट, चलो वो चले गए, ठीक है। तो गुलाम अहमद से बड़ा गुस्ताख रसूल ये गालीबाज अभी तक तो मैं बाबर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है जनाब? ठीक है। की हाल है बाबा जी, किथे गैबो गैब हो? मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे आ जाते हैं गुस्ताख। कल ਮੈਨੂੰ परसों एक ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੈ,
ਔਰ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੈਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ 200 ਝੂਠ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ? ਮੇਰੀ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 10 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਤਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਜ਼ਿਆਰ ਸੂਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗੁੱਜਰ 302 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਲਵੋ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਗ ਲਾਈਏ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 1 to 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। शाह जी एक क्वेश्चन है जी। शाह जी एक क्वेश्चन, अच्छा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जी उनका ये नजरिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो ना वो वफात पा ना चुके जी हैं? ना जी ना कदी भी नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਾਨ साहब सफा नंबर चैलेंज करने हैं। बात सुने जरा, बात सुने। हम चैलेंज कर रहे हैं करसे का कि जनाब ये अकीदा, इस अकीदे का जो पहला बंदा था वो था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बाद मिर्ज़ा कादियानी ने इस अकीदे को सर सैयद अहमद खान से लिया था। और सर सैयद अहमद खान को भी ब्रिटिश ने खड़ा किया था और इसको भी ब्रिटिश ने खड़ा किया। तो उससे पहले किसी दुनिया के किसी एक बाबे बुजुर्ग की किताब, कोई तफसीर, किसी हदीस की शरह, किसी हदीस कुरान की आयत है ही नहीं। ये कीदा मिलता ही नहीं है आपको। ये चैलेंज हमने किया हुआ है, आज तक किसी कादियानी ने इस चैलेंज को तोड़ा नहीं है। मुफ्ती और साहब अगली बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों या मुर्दा हों, मिर्जा कादियानी गाली गलोच से कैसे बाज आएगा? मिर्जा कादियानी शराब नोशी से कैसे खत्म होगा? जिनाकारी उसकी कैसे खत्म होगी? वो सारे ये गंदे काम करता था। हजरत ईसा से इन सब बदकारियों का क्या ताल्लुक है? हजरत ईसा जिंदा हो या मुर्दा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी एक मिनट जरा अपना बाबर भट्ट साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ गुज्जर ते अपना बंदा जे की करदे हो पे किस तरह करना किस तरह नहीं करना मैं कंट्रोल नहीं, मन नहीं पता इस तरह। गुज्जर ते अपना मुजाहिद खत्म नबूवत ते साडा प्यारा। अच्छा शाह जी अस्सलाम वालेकुम यार। एक सेकंड सारे भाई, एक सेकंड माजरत दे नाल, एक सेकंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, जिस टाइम बड़े बैठे ना उस टाइम थोड़ा जिहा तामल रखा करो डिबेट दे दौरान। जिस टाइम शाह साहब बैठे हैं ना ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
भट्ट साहब एक मिनट जी, मैंने जो सवाल किया था ना शाह जी से, शाह जी ये सफ़ा नंबर 34 पे वही आथम वाले में इसने हजरत इमाम मालिक के ऊपर जो ना वो बांधा हुआ है झूठ, और हजरत इमाम बुखारी पर भी झूठ बांधा हुआ है ओए इसने। हाँ वो तो ओ मिर्जे की तो बात ही कुछ और निराली है ना। लो उसने कभी कोई सच बोला है? हाँ, कोई एक अगर सच मसीह आज तक उसने बोला ही नहीं है। और हाँ मैं कह अगर रहा हूँ इधर मसीह देखे वो की कहता है पूरा सफा पढ़ के सुनाओ। पहले तो एक बात थी, जब पूरा सफा पढ़ा तो 10 चीजें सामने आ गई हैं। बताएं, ये जितना कहते हैं ना मैं पीछे से 2 सफे पढ़ो आगे से 2 सफे पढ़ो, वो उतने ज्यादा फंस जाते हैं कि मिर्जे की एक एक तहरीर एक एक सतर जो है ना उसके अंदर गलाजत है। अच्छा यार यहाँ दोस्त बैठे हैं, तवज्जो से सारे दोस्त सुन ले और पैगाम भी मैं दे दूं। ये अभी एक पोस्टर मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ, और यार ये महफल सजना दी हटाएंगे जरा स्पीकर थोड़ी देर के लिए। लो जी हट हाँ गई ये ना इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने इसको खत्म करना है जी। ठीक है और बाद में मैं बताता हूँ कि ये है क्या। स्क्रीन शॉट ले लें। लो जी जामिया खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियाद रख दी गई है, और ये तुलबा के लिए और तालबात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूंकि जगह हम खरीदने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बना बनाया घर हमें किराए पे मिल गए। तो हमने कहा जी काम तो शुरू किया जाए ना, क्योंकि मदारस के अंदर जो दाखिले होते हैं ना दरस निज़ामी के, उसके मखसूस महीने क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, और 10 शवाल या 15 शवाल तक पूरे पाकिस्तान के मदारस के अंदर लड़के हों या लड़कियां हों उनके वो दाखिले हो जाते हैं और क्लासें शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से हम मजबूर हो गए कि अब नहीं तो ये साल भी ज़ाया हो जाना था, तो हमने फिर किराए पर वो लेके ना डिसीजन ये लिया कि कम अज़ कम काम शुरू किया जाए, और अभी तालीम शुरू करते हैं बच्चों की, और बच्चे और बच्चियों दोनों की दाखिले करते हैं। तो जब अपना बनेगा तो यही सारे बच्चे उठा के हम अपने इदारे में शिफ्ट कर लेंगे, और हमें एक तादाद भी अच्छी खासी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये क्लास अब गुजरांवाला में आपके जो भी दोस्त अब आप रहते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है। दाखिले ओपन हो गए हैं, तो दाखिले लें भाई। लड़कियों का जो टाइम है वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास है, और लड़कों की क्लास नाइट क्लास है, नाइट क्लास, ताकि इसके अंदर मस्जिदों के जो आइमा इकराम है जिन्होंने दरस नमी नहीं की होती, वो सिर्फ हाफ़िज़े कुरान होते हैं बेचारे, तो वो भी अगर शिरकत करना चाहें तो बासानी वो अपनी मस्जिद की नमाज पढ़ा के तो वो क्लास के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो अच्छा ये टाइमिंग मुफ्ती साहब, रखी है। ये नीचे एक बंदा कह रहा है कि मुफ्ती साहब पैसे मांग रहे हैं, तो मुफ्ती साहब ने कोई घोड़े थोड़े रखे हुए हैं जो जुए में दौड़ते हों और नहीं उनको पैसे और नहीं मैं मांग रहा, मैं दूसरा दाखिले ये मांग है रहा हूँ कि कि मुफ्ती दाखिले साहब तो करवाएं। इस गाड़ियों में थोड़ा बैठते हैं या महमूद शाह की कोई तरह बात नहीं, जना कहने दे करके कहने फोटो भट्ट साहब, वो कोई टेंशन नहीं, इन इन चीजों की हमें कोई परवाह नहीं, इन चीजों की कोई परवाह नहीं, नहीं है, इनके रत्ती पैसों बराबर से नहीं। मैंने बोला बहुत ना बहुत मुबारक हो चाची। पाउंड का जना करते हैं ये महमूद शाह कोई शैगी कोई शाह। परवाह ही नहीं है। तो शार्प बहरहाल शूटर यार साहब मैंने आपको गुजरांवाला बना दिया है में जो मॉडरेटर, दोस्त ठीक है। हैं ये पैगाम पहुंचाए उन तक, उन फैमिलीज तक, और दाखिले हमें लेके दें इंशाल्लाह ताला। ये तकाबले अदयान और मज़ाहब की तलीमत होंगी, दरस नमी के साथ तकाबले अदयान और मज़ाहब की तलीमत होंगी इंशाल्लाह। और ये अपनी नौयत का मुनफरद अदारा है। हमारी इतलात के मुताबिक और हमारी रिसर्च के मुताबिक पूरी वर्ल्ड के अंदर इस किस्म का इदारा कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा निसाब है या जो हमारे अगराज़ो मकासद है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर शायद कहीं पर भी नहीं है। अगरचे ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन इदारे की नौयत के एतबार से और अगराज़ो मकासद के एतबार से ये दुनिया का मुनफरद इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल हम ने ये काम शुरू कर दिया है,
बकाया फिर देखते आगे आगे होता है क्या। जी साकी भाई आपको रिक्वेस्ट भेजी है यार, ऊपर आ जाएं। ये जमात अहमदिया से ताल्लुक है साकी भाई से, आप जरा ये ऊपर आए तो इनसे कोई गपशप करें। और साकी उत्ते आना यार, के दंद खोलने दी टाइम नहीं, ते उत्ते आ जा। शाह जी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर पाक बरकत मुबारक, और खैर बरकत डाले। खैर मुबारक, आमीन आमीन आमीन। जी बहुत बहुत मुबारक हो जी। अपना जी खैर मुबारक। अपना मुफ्ती साहब, मुझे ये समझ नहीं आती, वो जो बंदा आया था वो कह के गया जी कि मुफ्ती जो है वो नादर के सामने 2 मिनट टिकते, तो अभी क्यों नहीं आ रहे फिर इधर? उनको गैरत है तो फिर आए। ओ, इनकी तो क्या ही बात है, ले ये शुक्र करे उन्होंने नादर के ऊपर डाल दी ये बात है, उन्होंने अपने ऊपर नहीं डाली कि मैंने भी मुफ्ती ने चुक चुक के मारे हुए और नहीं नहीं, बस मुफ्ती साहब नहीं बदतमीजी करते यार। साकी तुम ऊपर आओ, की तो मैं जिम्मेदार हूँ, जाओ, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ते कमेंट पढ़दा कोनी जे है ते पता नहीं की और हो नहीं गया। साकी ये ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਮ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸੁਨਾ ਚਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਭਾਈ ਘੋੜੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਬੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਲਬੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲੰਮ ਉੱਥੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰਪੈਟਾਂ ਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਾਰੇ ਖੈਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਮ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ਰੂਬਾ ਪੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा यार भट्ट साहब ते दीगर सारे दोस्त बई, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। जी मुफ्ती अस्सलाम साहब वालेकुम जज़ाकल्लाह, रहमतुल्लाह। बहुत बिगाम बहुत यार शुक्रिया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वालेकुम ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਈ ਹੈ। जी जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, तुसी आए, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ਤੁਹਾਡੇ अस्सलाम मुकाम ਨੂੰ वालेकुम। बुलंद फरमाए। आमीन। वालेकुम सलाम। लो जी बाबर साहब आप चल आ बे जाए। साकी। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया ख़त्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया ख़त्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔